নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিবাবুর ১০৬তম বার্ষিকী জন্মদিবস, ১০৭তম জন্মদিবস। এই উপলক্ষে সকাল থেকে নানান কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তদান, কোথাও সবজি বিলি, কোথাও কমিউনিটি কিচেন, তো অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন ফর্মে জ্যোতিবাবুকে স্মরণ করা হয়েছে। এখন এই আমফান জনিত কারণে একদিকে রিলিফ এবং রিলিফের চুরির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই চলছে গ্রামে গ্রামে, পাশাপাশি কোভিড-19 এবং লকডাউনে নিয়ে যা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেভাবে ঝুলিয়েছে, সেখানে মানুষকে বাঁচানো, মানুষকে সচেতন করা, সেই প্রয়াস চলছে। আসলে এই সব কাজে আমরা জ্যোতিবাবুর প্রেরণা পাই, কারণ তিনি যখন রাজনীতি একেবারে প্রথম দিকে 40-এর দশকে, তখনই আমাদের এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বাংলায় বিশেষত, বন্যা, নানান রকমের অসুবিধার মধ্যে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানো, রিলিফ করা, জনরক্ষা কমিটি করা, পিপুলস রিলিফ কমিটি করা, কাকাবাবুর সঙ্গে থেকে বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে জ্যোতিবাবু দেখিয়েছেন যে কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয়, মানুষের দাবিগুলো নিয়ে যেরকম লড়াই করা হবে, হক নিয়ে যেরকম লড়বো, তেমনি আবার মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, এবং আন্দোলন সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি এখানে বেশি কিছু বলবো না। আজকে আমরা আমাদের যেটা জ্যোতিবাবু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ, তার এটা প্রথম কার্যক্রম এইভাবে আমরা করছি, এবং সেখানে আমরা সীতারাম ইয়েচুরিকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যাতে তিনি জ্যোতিবাবু স্মারক বক্তৃতা দেন, এবং আপনাদের সবার সহযোগিতা আমরা চাইব যে প্রত্যেক বছর আমরা এরকম যাতে স্মারক বক্তৃতা করতে পারি, এবং এই সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বাংলার এবং দেশের এবং বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, নানান যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেই নিয়ে আমরা নানান কর্মকাণ্ড করতে চাই, বিশেষ রিসার্চ, সার্ভে, এবং সেখানে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি যে একাডেমিক কাজকর্ম আছে, জ্যোতিবাবু যে পথে এগিয়েছেন, যে পথে সংগ্রাম করেছেন, তার সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এবং যেটা আজকের রাজনীতি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে আমরা মাথায় রাখবো। পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঐক্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়ন এবং এই রাজ্যের উন্নয়ন, শিল্প, কৃষি, এই সমস্ত দিকটা আমরা জোর দেবো। সেই ব্যাপারে আপনাদের সবার সহযোগিতা আমরা চাইছি এবং অনেক মানুষকে আমরা যুক্ত করতে চাই। আমাদের এই সেন্টারের, জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের যে ট্রাস্ট, তার চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিমানদা, কমরেড বিমান বসু। তিনি এই কর্মসূচি সভাপতিত্ব করবেন, আমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে কমরেড জ্যোতি বসুর ১০৭তম জন্মবার্ষিকী। আমরা সাধারণত কখনোই কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ছাড়া আমরা কারোর জন্মদিন পালন করি না, কিন্তু গত বেশ কিছু বছর ধরে বলা যায় কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মদিনের দিন রক্তদান শিবির হয়, অসংখ্য রক্তদান শিবির হয়। এবারও তাই হচ্ছে, কিন্তু জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ তার পক্ষ থেকে বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার উপরে একটু আলোচনা হবে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে। তিনি জ্যোতি বসুর ওপরে জ্যোতি বসুর স্মারক বক্তৃতা করবেন। এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। কে এই জ্যোতি বসু? আজকের জননেতা জ্যোতি বসু যা ঘোষণা করা হয়েছে, এই জ্যোতি বসু বিলেত থেকে এসে এখানে ভারতে পশ্চিমবাংলায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন। কিন্তু তার আগে বিলেতে যখন তিনি পড়াশোনা করছিলেন সেই সময় ইন্ডিয়ান মজলিসের সদস্য ছিলেন। ইন্ডিয়ান মজলিসের সদস্য হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে নানান বক্তব্য উত্থাপন করেছেন, যেমন উত্থাপন করেছিল
ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি, তার নেতা হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, তারা অনেক কথা, অনেক অনেক বক্তব্য রেখেছেন ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিলেতে বসেই। এখন কমরেড জ্যোতি বসু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সফল হলেন। প্রথম তার যাত্রা শুরু হলো রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপ কাঁচরাপাড়ায় তিনি সভা করেছিলেন। কমরেড জ্যোতি বসুর কথায় যদি বলি, তিনি বললেন, প্রথম আমি গেটে সভা করতে গেছি, সেখানে একটা চোঙা নিয়ে বলতে হবে, ছিল উপস্থিত 37 জন। 37 জনকে নিয়েই আমি প্রথম সভাটা করি। যদিও আমার বলার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ আমার ইংরেজি শব্দ চলে আসতো, কারণ বাংলায় আমি সব প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পেতাম না, তখন ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বলেছি। পরে আমি বাংলাটা ভালো করে শিখেছি। এই জ্যোতি বসু 1944 সালে তিনি কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে বক্তব্য রেখেছেন। আর রেলওয়ে ক্ষেত্র থেকে 1946 সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন রেলওয়ে ক্ষেত্র থেকে। সেই জ্যোতি বসুর তার যাত্রা শুরু হলো রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে, এবং তারপর বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, জনগণের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন, মানুষের বন্যার সময় কাজ, এই নানান কাজের মধ্য দিয়ে অনেকবার জেল জীবনও হয়েছে। এবং জ্যোতি বসু তারপর 1967 সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তর তার ছিল। আবার 1969 সালে যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়, তারও তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই দুটো যুক্তফ্রন্ট 21 মাস চললেও তখন তিনি কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারপর ইতিহাস সবাই জানে, 1977 সালে যখন সাধারণ নির্বাচনে যখন বামপন্থীরা, বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কমরেড জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেতে নির্বাচিত হন এবং রাজ্যের মানুষের স্বার্থে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মন্ত্রিসভা পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও কাজ করেছেন। মন্ত্রিসভা থেকে যখন চলে গেলেন, তারপরও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মানুষের কথা ভাবতেন, আন্দোলনের কথা ভাবতেন এবং তাদের সঙ্গে কাজে যুক্ত ছিলেন। এই ধরনের একজন ইলাস্ট্রিয়াস ফিগার ইন দি কমিউনিস্ট মুভমেন্ট, ইন দ্য লেফট মুভমেন্ট, ইন দ্য ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি, সেখানে তার স্মারক বক্তৃতা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলবার জন্য কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি তিনি উপস্থিত হয়েছেন। সীতারাম ইয়েচুরির কাছে অনুরোধ করব তিনি তার বক্তব্য রাখুন। ধন্যবাদ। আপনারা সবাইকে আমার লাল সালাম। আজকে আমাকে আপনি এই ভাগ্য দিলেন কি জ্যোতি বসু মেমোরিয়াল লেকচার দিতে। যদি আজ জ্যোতি বসু আমার সঙ্গে থাকতো তো 107 সালে প্রবেশ করতো। আর জ্যোতি বসুকে লাল সালাম বলে আমাকে বলে গেলেন লোক কমরেডরা কি আমি হিন্দিতে বলি, ইংরেজিতে না। তো তাই জন্যে আমি হিন্দিতে চেষ্টা করব, মাঝখানে বাংলাও যদি দরকার হয় তো एसे যাব बांग्लाते। लेकिन आज के दिन जब हम ये मेमोरियल लेक्चर देने का ये सौभाग्य मुझे जो दिया गया आज, ये मैं एक गर्व के साथ, एक क्रांतिकारी गर्व के साथ इसको स्वीकार किया, क्योंकि ज्योति बसु जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक लिविंग लेजेंड है, यानी एक जीवित
हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इसलिए हम कहते हैं वो जीवित प्रेरणा का स्रोत इसलिए है, उनकी जीवनी के अंदर अगर जब जाएंगे आप तो बहुत सारे पक्ष है जिसको हमें ध्यान से समझकर सीखने की जरूरत है। लेकिन उन पक्षों में मैं नहीं जा रहा हूँ। विमानदा अभी भी जब बोल रहे थे उनकी जिंदगी के बारे में कुछ झलक हम सबको दिखाए और बताया उनके योगदान जो रही है अलग अलग समय इतिहास में। लेकिन आज जब हम ये कहते हैं वो लिविंग लेजेंड है, उनके कई सारे गुणों में से 3 मुख्य बातें मैं समझता हूँ कि आज हमें उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वो ही है हमारे लिए एक प्रोत्साहन की, एक इंस्पिरेशन के लिए एक सोर्स। पहली बात तो उनकी ये है कि उनकी जो दृढ़ता है, उनकी जो कन्विक्शन का, कमिटमेंट का, और वो जो जिस तरीके से समझकर मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित होके, जैसे विमानदा ने कहा, विलायत में रहते हुए दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी की जो परिस्थितियां जो चल रही थी उस समय, फांसीवादी विरोधी उस माहौल में जो कम्युनिस्ट बने, जिंदगी भर उन उसूलों के साथ वो जुड़े रहे। और वो जुड़े रहने के लिए कोई यहाँ पर मौका परस्ती की बात नहीं। बहुत बड़े वो वकील बन सकते थे, बार एट लॉ बन सकते थे, लेकिन सब छोड़कर जनता की सेवा में एक नया समाज को जन्म देने के लिए, एक नया दुनिया को जन्म देने के लिए, ऐसे दुनिया जहाँ पर कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर शोषण नहीं कर सकता, उस तरीके की समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए पूरा जीवन अंकित कर। और ये अंकित करना कोई जज्बात के आधार पर नहीं था, ये अंकित करना ये उनकी, और ये है उनका दूसरा गुण, ये उनकी सोच और विचार के आधार पर और रीजनिंग के आधार पर। यानी हर बात के ऊपर सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब खोजे, कौन सा सही है, उसके आधार पर जो है हमें इस वैज्ञानिक जो एक विचारधारा है मार्क्सवाद को आगे ले जाने के लिए बिना इस तरीके की रीजनिंग, बिना इस तरीके की सोच विचार विमर्श, और उसी के आधार पर जो है हमें आगे चलना है, ये था उनकी दृढ़ता, उनकी कमिटमेंट। अब ये जरूरी है क्योंकि जज्बाती तौर पर जो भी आते हैं राजनीति के अंदर, वो अक्सर कई सारे भूल कर बैठते हैं अपने जज्बात के चलते हुए। लेकिन जो विचारधारा और सोच के आधार पर जो आता है, और जिसका तीसरा गुण यही था कि वो एक नेक इंसान थे। इंसानियत या ह्यूमनिज्म जो है वो एक बुनियादी एक स्तंभ है मार्क्सवाद का। मार्क्स ने कहा था, लेकिन अंग्रेजी में कहा था तो वही कहूँ कि देयर इज नथिंग ह्यूमन विच इज एलियन टू मी। कोई भी जो एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ चीज है उसके साथ हम भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी अगर कोई समस्या है तो उसका हल देना जरूरी। तो आखिरी दिन तक हम सबको, हमारी पीढ़ी को उन्होंने एक ही उसूल सिखाया, जब कभी आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता अपनाए आगे चलने के लिए, और ऐसे तो कई सारे परिस्थितियां और समय आती है और आज भी है, ऐसे परिस्थितियों में एक ही उनका मंत्र था, एक ही सूत्र था, और वो था जनता के बीच में जाओ। जनता तुम्हें सिखाएगी, लोग तुम्हें सिखाएंगे कि कौन सा सही रास्ता हमें अपनाना है। ये जो विश्वास था पूरी जिंदगी भर लोगों के अंदर, ये बहुत ही कम इंसानों में हमें नजर आती है, और एक कम्युनिस्ट होने के नाते ये लोगों के साथ विश्वास था जब भी जो बात आई। और ये इंसानियत के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हमें हमारी जिंदगी को अंकित कर दी, उसी तरीके से उसको कैसे आगे बढ़ाना, इस बात पे एक बात हमें याद आती, जब नया नया शुरू हुआ था कि आपके गुजर जाने के बाद भी आपका शरीर का उपयोग हो सकता है दूसरे जिंदा इंसानों को। यानी किसी के पास आंखें नहीं है तो आपके आंख उनको फायदा दे सकती है, या कोई और ऑर्गन आपके बॉडी का जो फायदा आएगा। तब शुरू हुआ कि आपको गुजर जाने के बाद वो बॉडी की डोनेशन
आप जो है विज्ञान के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए देंगे तो उसका फायदा दूसरों के लिए होगा। तब ज्योति बसु ने क्या कहा था, ज्योति बाबू ने, उन्होंने कहा था ये तो अद्भुत चीज है, जिंदगी पूरा हमने अंकित किया लोगों की सेवा के लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारे मरने के बाद भी हम ये सेवा कर सकते हैं, और मरने के बाद भी ये सेवा कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा और अद्भुत चीज क्या हो सकती, और अपनी बॉडी डोनेट कर दी। इसीलिए हम कहते हैं वो लिविंग लेजेंड है। आज पता नहीं कौन उनके आंखों से देख रहा है, पता नहीं किसको और किस तरीके की फायदा हुई है, लेकिन अब ये फायदा जो करेंगे हमारे मरने के बाद भी, अब बताइए इसके पीछे कितना गंभीर एक उसूल। और इसीलिए हम कहते हैं ये लिविंग लेजेंड है, क्योंकि ऐसे है लोग जो मरकर भी मरते नहीं है। ये स्पेन की सिविल वॉर के समय डोलारिस इबाबोरा, जो उनकी जनरल सेक्रेटरी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसे ला पासनारा कहते हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम कम्युनिस्ट ऐसे लोग हैं जो मौत से डरते नहीं, क्योंकि हम मरकर भी मरते नहीं। और ज्योति बाबू इसलिए लिविंग लेजेंड है क्योंकि ये तीनों गुण, और इसे हम ध्यान में रखने की जरूरत। लेकिन ज्योति बाबू आए कम्युनिस्ट आंदोलन में उस समय जब दुनिया की परिस्थिति, देश की परिस्थिति अलग थी, स्वतंत्रता की आंदोलन चल रही थी। उस स्वतंत्रता के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उस सवाल पर कांग्रेस उस समय जो नेतृत्व दे रही थी स्वतंत्रता आंदोलन की, और कम्युनिस्टों के बीच में बहुत विवाद होते थे, और बहुत वामपंथी विचार का प्रभाव भी कांग्रेस के ऊपर पड़ा कम्युनिस्ट आंदोलन के वजह चलने से। और इसका पूरा योगदान के अंदर ज्योति बसु का भी एक बहुत बड़ा हाथ है उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन मार्क्सवाद की बुनियादी उसूल क्या? ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण, कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस। ज्योति बाबू के जमाने के जो ठोस परिस्थितियां हैं, उस ठोस विश्लेषण के आधार पर उनका योगदान रहा। अगर उनकी जिंदगी से कुछ सीखना है तो आज की ठोस परिस्थितियों में किस तरीके की ठोस विश्लेषण की जरूरत है कि हम आगे जो है हमारे आंदोलन को और मानव मुक्ति की ये जो प्रेरणा है हमारे अंदर, इसको और मजबूती के साथ कैसे आगे ले जा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी आज हमारी अपनी पीढ़ी पे है, और हमसे भी ज्यादा जिम्मेदारी अब आने वाली पीढ़ियों पे है, क्योंकि बहुत सारे तो हमारे जो अब साथ जो कम्युनिस्ट आंदोलन में आए, ये सब अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, स्वाभाविक है, ये होगा ही। लेकिन आज की ठोस परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने समझा था उस समय, वो उस पीढ़ी ने, कि भारत के अंदर जो क्रांति का जो रास्ता रहेगा, वो ना रूस की क्रांति का रास्ता रहेगा, ना चीनी की क्रांति का रास्ता रहेगा, लेकिन वो रास्ता रहेगा भारत की रास्ते। इसीलिए भारत के रास्ता क्या है, उसी वजह से कम्युनिस्ट आंदोलन में बंटवारा हुआ। सीपीआई एक तरफ जो रूस का रास्ता था, सीपीआई नक्सलाइट और जो बाद में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बने, उनका दूसरा तरफ कि चीन का रास्ता होगा, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा नहीं, ये भारत का रास्ता भारत का ही होगा, और वो होगा ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण में। और उसके चलते हुए कम्युनिस्ट ज्योति बाबू कहाँ पर खड़ा किए कम्युनिस्ट आंदोलन को बंगाल में, और जो वामपंथी सरकार जो आई, ये सब अब इतिहास है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज की ठोस परिस्थितियों में, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर अगर देखें या पूरे दुनिया में देखें, तो खास बात आज की जो सबसे बड़ी मुख्य खास बात क्या है, वो है ये कोविड की महामारी, ये कोविड-19 का पैंडेमिक जो महामारी है, ये अब जो है पूरे दुनिया में फैल चुका है, हामी हो चुका है। और ये हामी जो हुआ है, इसके चलते हुए कई लाखों लोगों को ये जो है ऑलरेडी ये लग चुका है, ये इन्फेक्शन हो चुका है, कई लाखों लोग मर चुके हैं, कुछ 7 मिलियन से ज्यादा लोगों को। अब कहा जा रहा है, आंकड़े देने का मतलब नहीं है क्योंकि रोज बदलते रहते हैं आंकड़े, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक नया एक वातावरण पैदा हो रहा है दुनिया में, जहां पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूंजीवादी देशों के मुकाबले में अगर आप देखें तो आज तक पिछले 20-30 सालों से
ये नव उदारवादी या ये नियो लिबरल एजेंडा लेकर जो ये पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, विश्वीय वित्त वित्त पूंजी के नेतृत्व में, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के नेतृत्व में जो ये प्रक्रिया चल रही थी, वो नियोलिबरल ऑर्डर के चलते हुए सभी सार्वजनिक सुविधाओं का निजीकरण हुआ, जिसके अंदर स्वास्थ्य का क्षेत्र का भी था, ताकि वो मुनाफे बढ़ा सके। नियोलिबरलिज्म या नव उदारीवादी जो विचारधारा है, उसका मकसद क्या है? जो बुनियादी मकसद जो मार्क्स ने हम सबको सिखाया कि पूंजीवाद जिंदा रहता है मुनाफे पे, जितना ज्यादा मुनाफा हो वो उद्देश्य रहेगा हर पूंजीपति का और उस व्यवस्था का। और ये नव उदारवादी आर्थिक संस्करण उसी पूंजी अब मुनाफे को बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी उनकी कोशिश रही है, यानी सब चीजों की निजीकरण करना। अब ये महामारी जब आई, यहाँ पर स्पष्ट नजर आ गया कि जब अगर स्वास्थ्य के व्यवस्था को ही आप निजीकरण कर दिए, ये महामारी जो है वो किसी अमीर और गरीब के बीच में भी फर्क नहीं देखता कि कोई पूंजीपति है या कोई मजदूर है। अब ये इन्फेक्शन आता है तो सबको आ सकता है, लेकिन जिनके पास साधन है, ये है पूंजीवादी व्यवस्था का खास बात जो हमें समझना है। जिनके हाथ में साधन है, उनके हाथ में ये स्वास्थ्य की सुविधाएं खरीदने की शक्ति है, और जो गरीब शोषित जो जनता है, जो दुनिया के बहुमत जनता है, उनके पास ये सरकारी जिम्मेदारी वंचित होने के बाद, खत्म होने के बाद कि स्वास्थ्य के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे पूंजीवादी देशों में ये इन्फेक्शन का रेट भी बड़ा है, ज्यादा है, और आपके मौतें भी ज्यादा हुई। समाजवादी देशों के इस मुकाबले में देखिएगा, अब ये कोविड पैदा हो गया, ये पूरा प्रचार अब दुनिया में चला रहे ट्रम्प साहब। पहले दिनों में तो बड़ा वाहवाह कर रहे थे चीन का, कि चीन ने बहुत अच्छा तरीके से संभाला इसको, लेकिन अब क्यों कर रहे, मैं आऊंगा उसके बारे में। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं इसका पैदाइशी हुई है चीन में, चीन इसके लिए जिम्मेदार है, और ये कहते हैं कि चीन ने इसको जो है पूरे देश में, दुनिया में फैलाया। अरे आखिर ये क्या बीमारी है? इसको पहचानने में ये कहाँ से आया, किधर से आया, ये अभी तक ना पता है, ना मुमकिन है मालूम होना, क्योंकि एक खास गलत फहमी में रहते हैं इंसान। वो समझते हैं कि जब इंसान पैदा हो गया, प्रकृति में, नेचर में एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है बंद हो गई, हमारे बाद और कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। अब ये तो हो नहीं सकता, एवोल्यूशन चल रहा है, हर दिन नए नए जीवन पैदा हो रहे, नए किस्म के जीवन पैदा हो रहे, और ये जीवन जो पैदा हो रहे वो किस तरीके से वो प्रकट हो रहे हैं, इसे जो है हमें समझने में समय लगती है। ठीक, पहला केस उभर कर आया चीन के वुहान में, और उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये चीन का वायरस है। अरे पहला केस भारत में उभर कर आया केरल में, तो क्या ये कहेंगे आप ये केरल का वायरस है? ये प्राकृतिक के अंदर जो नेचुरल एक नियम है, वैज्ञानिक एक नेचुरल लॉ ऑफ एवोल्यूशन है, उसके चलते हुए नए नए चीज आ रही है। उसके पहचानने में समय लगा। जब लोग निमोनिया की वजह से शिकार हो रहे थे, सोचा कि ये वायरल निमोनिया है या वगैरह वगैरह, कोरोना वायरस है, लेकिन नई किस्म की कोरोना वायरस है। ये नाम कभी कभी नोवल कोरोना वायरस, कभी न्यू कोरोना वायरस, कभी एन कोरोना वायरस, कभी स्वाइन फ्लू समझते थे, कभी ब्लड फ्लू समझा, लेकिन बाद में पता चला ये नए किस्म का ही एक नया कीटाणु है। अब उसको 1 महीने से ज्यादा समय लगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उसका नाम देने में, कोविड का। अब उसको कैसे वो अब इन लोगों के बीच में जा रहा है, किस तरीके से ये बीमारी फैला रही है, इसको पहचानने भी वक्त लग गई। अब समझ में आया कुछ, और इसको काबू में रखने के लिए समाजवादी देशों की परिस्थिति देखिए। चीन के अंदर इसको काबू में ले आए, सबसे ज्यादा वहां पे था। बगल में वियतनाम के अंदर एक भी मौत नहीं हुई कोविड की वजह से। इतनी लंबी सरहद है चीन के साथ, उसके बावजूद। क्यूबा में आप देखेंगे आज नए दवाइयां, क्यूबा आज अखबारों में आया बात, ये 2 दवाई क्यूबा ने आज तैयार की है, जो वो कहते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए बहुत
योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से समाजवादी देशों की हालत अब देखेंगे, जहां पर व्यवस्था है जनता के लिए स्वास्थ्य का, उस व्यवस्था के अंदर उसके वजह से जो समाजवाद का जो एक सुपीरियोरिटी है पूंजीवाद के मुकाबले में, वो इस महामारी से निपटने में भी साबित हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे दुनिया में जब ये सब नजर आ रहा है सबको, पूंजीवादी देशों के अंदर ही लोगों के अंदर और वहां के चिंतकों के अंदर, विचारधारकों के अंदर एक नई नई सोच उभर कर आ रही है, जो वहां के बड़े बड़े अखबार जो है इसके बारे में संपादकीय लिख रहे हैं कि अब कम से कम 4 चीजें को करने की जरूरत है। पूंजीवादी व्यवस्था को ही अंग्रेजी में जो कहते हैं, वो कहते हैं कि पुराना कैपिटलिज्म के लिए पुराना ओल्ड नॉर्मल अब खत्म हो चुका है, एक न्यू नॉर्मल हमें लाने की जरूरत है। और वो न्यू नॉर्मल है कीन्स और रूजवेल्ट के जो जमाने की जो बातें हैं उनको फिर वापस ले आने की जरूरत है। क्या थी ये बातें? दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो आर्थिक एक संकट हुआ था, जिसके ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, 1929 से लेकर वो ग्रेट डिप्रेशन जो चला, उससे बाहर निकलने का रास्ता कीन्स ने बताया कि ये सब मार्केट पर छोड़कर, निजी पूंजीपतियों पर छोड़कर इसका हल नहीं निकल सकता जब तक सरकार निवेश नहीं करेगी और उस निवेश से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लाखों के तादाद में नए नौकरियों की जो सृष्टि होगी, इन मजदूरों के हाथ में जब अपना वेतन का पैसा आएगा, वो जब उसको खर्च करना शुरू करेगी, तब ये अर्थव्यवस्था को मोड़ने के लिए मौका पैदा होगा। और कीन्स ये बात रखते हुए क्या कहा था? अगर ये बात नहीं सुनती है मेरी पूंजीवादी व्यवस्था, तो समाजवाद को आप रोक नहीं सकते हो। तो समाजवाद को रोकना है तो ये काम करना। ये था कीन्स की बात उस समय। उसी के चलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट न्यू डील का मतलब घोषणा किया था। आज जो अमेरिका में जाते हैं अपने बच्चे और वहां पे अभाग हो जाते हैं कि देखते हुए कि कितने बड़े बड़े रोड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना ये सब कुछ है। ये सब बनाया किसने? ये सब सरकारी निवेश से बना, निजी पूंजी के निवेश से नहीं। अमेरिका से लेकर समाजवादी चीन तक, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पूरे देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की सृष्टि होती है सरकारी निवेश से। अब आज ये बात दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं आज 4 मुख्य बातें वो आज कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है। और पहली बात तो ये है कि जो मैं कह रहा था, सरकारी निवेश को बढ़ा। आज जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, 2 दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया ब्रिटेन में, ये कहते हुए कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आज इस संकट से बाहर निकलना है तो हमें सरकारी निवेश से अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये कह रहे ब्रिटेन के जो एक कंजर्वेटिव, एक दक्षिणपंथी राजनीतिक नेता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और दूसरी ओर से ये पहली बात को कह रहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि ये हालत को देखते हुए पब्लिक व्यवस्था और सुविधाएं हमें देने की चाहिए है, जन सुविधाओं के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आपके जन सुविधाएं बाकी जितने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, इन सब के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा निजी पूंजी की नहीं। तीसरी बात वो कहे क्या कि ये जो आर्थिक विरोधाभास जो बढ़ता गया है, एक चीज याद रखिए, महामारी से भी पहले एक बड़ी संकट में पूंजीवादी व्यवस्था थी, आर्थिक संकट। 2008 में जो संकट शुरू हुआ, वो संकट चल रहा था और गहरा हो रहा था, उसका हल कोई नहीं निकल रहा था पूंजीवादी व्यवस्था में, ना निकलेगा। तो ना अब ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो आर्थिक विरोधाभास जो बढ़ा, उसके चलते हुए आज जो कही जा रही है, ये बात पहले भी कही, नोबेल पुरस्कार पाने वाले जोसेफ स्टिग्लिट्ज से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में जो होता है हर साल,
जो नुमाइश होती है, एक एग्जीबिशन होता है, दुनिया के बड़े बड़े सबसे अमीर लोग आते हैं, पूंजीपति, वहां से भी ये बात आई कि ये विरोधाभास को कम करने की जरूरत है, वरना पूंजीवादी व्यवस्था के लिए भविष्य जो है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। क्यों हो जाती है? जितना आर्थिक आर्थिक असमानता बढ़ती है, उतना ही बहुमत लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता घटती है। और पूंजीवादी व्यवस्था का बुनियादी नियम, उत्पादन करोगे, उस वस्तु का बिक्री अगर नहीं होता तो मुनाफा नहीं बन सकता। बिक्री अगर होना है, लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता चाहिए। अगर खरीदने की क्षमता लोगों की घटती जा रही है क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तब पूंजीवादी व्यवस्था की संकट गहरा होगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आर्थिक विरोधाभास जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, उसको कम करो। और चौथी बात, वो कहने लगे कि अब जो है बिना मजदूर वर्ग की सहायता से, बिना मजदूर वर्ग की सहायता से पूंजीवादी व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती। तो मजदूरों की अधिकार और जो है गहरा करो, यानी लेबर लॉज, लेबर राइट्स को और मजबूत करने की जरूरत है। और जितना आप जो है ये लेबर राइट्स को जितना ज्यादा आप जो है इसको दोगे, उतना ही ज्यादा लेबर पार्टिसिपेशन होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और कैपिटलिज्म जो है इस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। अब ये जो बातें जो कही जा रहे हैं, थॉमस पिकेटी से लेकर ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो मैंने बताया था, सभी लोगों के लिए ज्यादा स्टेट इंटरवेंशन, ये जो है पूरी की पूरी नव उदारवादी नियोलिबरल फिलॉसफी से एकदम भिन्न। लेकिन कीन्स और रूजवेल्ट का समय का दुनिया और आज का दुनिया में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क। आज के दुनिया में पूंजीवादी विकास और पूंजीवादी विकास और पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी या इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल। और फाइनेंस कैपिटल हर समय यही चाहता है कि स्टेट जो है वो अपने ये अर्थव्यवस्था से दूर रहे। मार्गरेट थैचर जो शुरू की थी ये पूरी व्यवस्था, उनमें से एक है रोनाल्ड रीगन दूसरी तरफ अमेरिका में, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में। उन्होंने क्या कहा था अंग्रेजी में? इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। और पूरे पब्लिक सेक्टर की निजीकरण कर दी थी ब्रिटेन में। आज उल्टा करने की मांगे जो है बड़े जोर से हो रहे हुए हैं। ब्रिटिश रेलवेज को जो निजीकरण हो गया था, उसकी जो है राष्ट्रीयकरण की शुरुआत जो है वहां पर चल रही है आज। खैर वो बात अलग है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर ये जो नेतृत्व जो दे रहा है पूंजीवादी व्यवस्था का और ये नव उदारवादी नीतियों की प्रक्रिया का, नियो लिबरल ऑर्डर का, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस के हाथ। और इंटरनेशनल फाइनेंस, ये जो अभी ये चार बातें जो कही जा रही है दुनिया के अंदर प्रमुख अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर आप सभी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को लेकर, जो बड़ी प्रसिद्ध इकोनॉमिक जर्नल है लंदन से, ये सभी जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं इन चारों पॉइंटों के ऊपर, ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल मानेगा नहीं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर वो नहीं मानेगा तो होना क्या है, इसका राजनीतिक परिणाम होती है। ये बात हमने पार्टी ने पहले भी, इस महामारी से पहले भी इसका विश्लेषण किया था। और राजनीतिक परिणाम क्या है? संकट से बाहर निकलना और मुनाफे बनाए रखना है, तो शोषण की जो स्थिति है उसको और तेज करनी होगी। मजदूर वर्गों के ऊपर और ज्यादा शोषण, उनके अधिकारों से उनको वंचित करना। कई पर यूरोप जैसे जगह पर ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम पर पेंशन का घटाओ, आपके वेतन का को काटो, आपकी लीव को काटो। इस तरीके से ये अटैक्स बढ़ाते हुए, ये शोषण बढ़ाते हुए और ज्यादा मजदूर वर्ग के ऊपर ये हमले होंगे। अगर ये सब करना है तो आपको एक ऐसे सरकारें चाहिए जो तानाशाही का रुझान अपनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये जो असंतोष जो फैल रहा है,
ये जो आर्थिक संकट के और उसके चलते हुए जो उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो असंतोष फैल रहा है, उस असंतोष को गलत रास्ते पे मोड़ने की जरूरत। कहीं पर नस्लवाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अमेरिका में, ब्लैक लाइव्स मैटर की पूरी बात आप देखिए। आज क्या स्लोगन दिया उनके चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने? व्हाइट पावर की बात। व्हाइट पावर के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और अभी सरकार में जो है मोदी सरकार, वो उनका ये क्या करना है, हम हिंदू पावर के नाम पर जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। हिंदू नहीं, हिंदुत्व पावर के नाम पर हम चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इस तरीके से लोगों को बंटवारा कर दे ताकि उनके अंदर जो गुस्सा है इस व्यवस्था के खिलाफ, वो गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ ना प्रकट हो, लेकिन वो आपस में तनाव के चलते हुए एक दूसरे के खिलाफ जो है, ये गुस्सा जो है वो एक दूसरे के खिलाफ झगड़े और लड़ाई में और नफरत में इसको बदल दे। और यही चाल आपके ब्राजील में बोल्सोनारो के नेतृत्व में हो रहा है, यही टर्की में एर्दोगान के नेतृत्व में हो रहा है। आज दुनिया के अंदर सब ये दक्षिणपंथी रुझान जो आ रहा है, तानाशाही व्यवस्था से और फांसीवादी तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की शोषण की व्यवस्था को और तेज कर रहे हैं। तो यानी आज दुनिया के पैमाने पर आज देखेंगे हम, तो दुनिया के पैमाने पर वर्ग संघर्ष और तेज होंगे। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, उस इशारे में जा रहा है दुनिया। और इस वर्ग संघर्ष तेज जो हो रही है, इसके अंदर अमेरिकन साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या है? इस महामारी के दुनिया के बाद उनकी नेतृत्व में उनकी दादागिरी जो दुनिया के ऊपर होगी, उस दादागिरी को और मजबूत करें। यानी यूएस इंपीरियलिस्ट हेजेमनी को और मजबूत करने के लिए अभी से डोनाल्ड ट्रंप साहब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं महामारी से निपटा चाहिए चाइना, उसकी अर्थव्यवस्था की रिकवरी शुरू हो चुकी है, और वो रिकवरी अगर चाइना करेगी तो अमेरिका को ये चैलेंज देने की परिस्थिति में आ सकती है। तो चाइना के ऊपर अंकुश लगाओ। आज ये पूरे ट्रेड सैंक्शन या चाइना के साथ जो जितनी उसकी टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करने की बात हो, या उसको चाइना को आइसोलेट करने वाली बात हो, ये पूरे की पूरी जो ये कोशिशें हो रही है अमेरिकन साम्राज्यवाद की तरफ से, ये है कि उस दुनिया को, आने वाली दुनिया के अंदर उनकी दादागिरी और उनकी हेजेमनी जो है और मजबूत हो, और साथ ही साथ कि इस अमेरिकन साम्राज्यवाद की ये दादागिरी और उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज ना करे। एक तरह से चीन, इसलिए ऑफिशियली उनका पॉलिसी क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना। कंटेन करना है चाइना को, उसके लिए जो भी चाहिए करिए, उसलिए ये मुहिम जो निकला। उसीलिए आज दुनिया के अंदर महामारी के खिलाफ लड़ना है तो सब मिलजुल कर लड़ना है। नहीं, ट्रंप साहब इसी उद्देश्य के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल आए। इसी उद्देश्य के साथ दुनिया के अंदर जो भी दवा जो सृष्टि होती है, जो मदद कर सकती है इस महामारी से बचाव के लिए, उन दवाओं को सब दुनिया के पैमाने में खरीद लिए हैं। उसका मोनोपोली जो है, अभी रेमडेसिविर करके एक दवा था, वो सबको दुनिया में जितना उत्पादन हुआ वो सबको खरीद कर ले गया अमेरिका में। पैराक्लोरोक्विन के साथ किया था उन्होंने। यानी किसी और को जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है, हम जिंदा रहे, हम तुम्हारे ऊपर दादागिरी करेंगे। और तीसरी ओर स्वतंत्र देशों के अंदर हस्तक्षेप, जैसे वेनेजुएला है, ईरान है, सीरिया है, इन सभी देशों के अंदर अपनी इंटरेस्ट की हिफाजत में अपनी दादागिरी को और मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप, मिलिट्री हस्तक्षेप इस महामारी के दौरान ये भी चल रहा है। यानी हालात क्या उभर रहे दुनिया में? चारों के चार जो मुख्य अंतर्विरोध है साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच में, साम्राज्यवाद और स्वतंत्र देशे उनकी जो आत्म संप्रभुता के खिलाफ जो साम्राज्यवाद हमले जो कर रहा है, वो तेज हो रही है। आपके साम्राज्यवादी देशों के बीच में ही इस महामारी के चलते हुए, इस आर्थिक संकट के चलते हुए, वहां पर उनके बीच में एक जो है अंतर्विरोध वो भी तेज हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच में, यूरोप, अमेरिका और जापान के बीच में ये अंतर्विरोध भी तेज हो रही है। और मुख्य रूप से संकट के चलते हुए श्रम और पूंजी के, कैपिटल और लेबर के बीच में ये अंतर्विरोध और तेज हो रही है। यानी मतलब दुनिया आज खड़ी हुई है इस मकाम पर
जहां पर ये वर्ग संघर्ष और बड़े पैमाने पर तेज होने की संभावना है। और वहां पर ज्योति बाबू से सीखते हुए कम्युनिस्ट होने के नाते हमें हमारी जिम्मेदारी को पूरी करनी होगी कि इस वर्गीय संघर्ष जो और तेज होगा उसके अंदर उसकी नेतृत्व देते हुए पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक ऐसी राजनीतिक विकल्प समाजवाद की वो खड़ा करने की जरूरत है। ये दुनिया के अंदर ये सभी कम्युनिस्टों की ये आज जिम्मेदारी बनती है। अब इसी दृष्टिकोण में देखिएगा कि आज अपने देश के अंदर क्या हो रही है। मोदी साहब ये जो 4 पॉइंट जो दुनिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि पूंजीवाद को बदलना है, इन चारों पॉइंट जो पहले मैं बता रहा था उसके टोटली विरोध में पूरा का पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो चाहती है उसी एजेंडे को ले जा रहे हैं। यही आर्थिक सुधारों के एजेंडे को लेकर के इस महामारी के दौरान क्या किया, सभी पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, आपके मजदूर के कानून जो है उन कानूनों को रद्द करने की पूरी कोशिश, और ये निजीकरण के खिलाफ संघर्ष है अपने देश के अंदर भी। ये वर्ग संघर्ष बढ़ रहे हैं। अभी हाल में देखा, अब ये 3 दिन का जो कोल स्ट्राइक हुआ 99% से ज्यादा ये जो है सक्सेसफुल रहा है 3 दिन लगातार। ये एक नई बात है इस महामारी के दौरान। इस अंकुश जो लगी हुई है आपके राजनीतिक कामों के ऊपर इस महामारी को चलते हुए, उसके दौरान ये बड़े बड़े ये पहले हुआ था आपके डिफेंस की निजीकरण में, आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर, डिफेंस के यूनिट्स के अंदर आपके हुए BSNL और बाकी जो टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर। और ये बढ़ेंगे, ये संघर्ष ये बढ़ेंगे। और ये आपके मजदूर वर्ग, किसान सभा और आपके खेत मजदूर, अब तीनों मिलकर आज जो है कई सारे अब ये घोषणाएं की। अभी 23 तारीख को इस जुलाई के फिर होगा, फिर 9 अगस्त को उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया विरोध का। अब ये वर्ग संघर्ष चलती रहेगी, लेकिन सभी उदारवादी आर्थिक नीतियां और ये उदारवादी आर्थिक नीति के चलते हुए उनका क्रोनी कैपिटलिज्म को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जिनको फायदा मिलता है ये निजीकरण के चलते हुए उनसे पैसे वसूल करके अपनी राजनीति के लक्ष्य को इस्तेमाल करने के लिए आज राजनीति को ही उतार दिया पैसे के धंधों में। सरकारें गिराना, MLAs को खरीदना राज्यसभा चुनाव के लिए, ये मामूली सी बात होगी। और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का धंधा चल रहा है, इससे भ्रष्टाचार ही नहीं लेकिन पूरी की पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था को ही बिगाड़ने की कोशिश। अब ये एक रुझान है इनके चलते हुए। अब दूसरी ओर से आप क्या देख रहे हो, जब होना चाहिए हमारा मकसद क्या है, मोदी सरकार का और देश का मकसद होना चाहिए एक दिमाग के आधार पर सब मिलजुल कर हमें जो है, जैसे हमारे पुराणों में कहा जाता है, जब अर्जुन को मछली के आंख को मारना था तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं वो तीर चलाने से पहले क्या नजर आ रहा है, तो कहता मछली नजर आ रही है। इसे नहीं, और देखो जब आखिर में जब अर्जुन कहता है कि सिर्फ आंख नजर आ रही है, इधर अब तीर चलाओ। ये आंख के निशाने पर तीर चलाना, ये महामारी उसी तरीके की है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। अब ये लड़ना चाहिए तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए सरकार ने। उल्टा क्या किया, जब आपको पता चला दुनिया में दिसंबर से, पिछले साल के दिसंबर से कि इसकी मतलब ये खतरे महसूस हो रही थी, जनवरी के अंदर ये पता था कि फैल रहा है दुनिया में, और 25 जनवरी को भारत के अंदर पहला केस उभर आया केरल में, और 25 से पहले केरल की अपनी वामपंथी सरकार 20 तारीख से ही वहां पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स वगैरह वगैरह ये सब कुछ करके वैज्ञानिक तौर पर वो किया था। क्या है, पहला टेस्टिंग, फिर उसके बाद पॉजिटिव वालों को आइसोलेशन, उसके बाद तीसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी वो पॉजिटिव वालों से कौन कौन मिले हैं उन सबको जो आइडेंटिफाई करना, और चौथा उन लोगों की क्वारंटाइन। ये 4 अगर इस तरीके से करेंगे आप,
तो ये संभव था, तो इसको जो है कंटेन कर सकते थे, उसको कम कर सकते थे प्रभाव। लेकिन उल्टा मोदी साहब ने क्या कहा, जनवरी से लेकर 25 तारीख को ये आई खबर, आप पूरे फरवरी में आप जो है नमस्ते ट्रंप के लिए लाखों के तादाद में लोगों को इकट्ठा किया अहमदाबाद में। अब देखिए अहमदाबाद में हालत। उसके बाद आपने अनुमति दे दी है तबलीगी जमायत के लिए दिल्ली में। यही तबलीगी जमायत के लिए वो चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में करें। वो महाराष्ट्र की सरकार वहां पे कहा कि आज ये महामारी के दौरान ये गलत होगा, हम नहीं देंगे अनुमति। लेकिन दिल्ली सरकार सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर अमित शाह साहब के नेतृत्व में वो ये यहाँ पर परमिशन देती है। विदेश से लोगों को आने के लिए सरकार वीजा देती है, और विदेश से जो आए उनको देश के अंदर घूमने की इजाजत देती है। अब ये सब कामें जो करी, जिसके चलते हुए महामारी को अंकुश में लगाने की जगह वो और बढ़ने का उसको प्रोत्साहन हुआ। और तीसरा मुख्य बातों में से कई सारे बातें हुए से मध्य प्रदेश के अंदर खरीदारी के आधार पर जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराना, और भाजपा की सरकार की शपथ ग्रहण कराने तक वो जो है पार्लियामेंट को भी चलाया दिल्ली के अंदर, जब ये खतरे बढ़ रहे थे महामारी की। और ना कोई नकाब पहनता था उन दिनों में, ना सरकार ने कहा सबको पहनना चाहिए, ना सैनिटाइजर इस्तेमाल होती थी, और सब मतलब एक साथ नजदीकी के साथ कोई डिस्टेंसिंग नहीं होता था। लेकिन इसके चलते हुए शपथ ग्रहण पब्लिकली किया मध्य प्रदेश में, और उनका सरकार बनते ही आप देखेंगे उसके बाद आज गुजरात की हालत देखिए, मध्य प्रदेश की हालत देखिए, दिल्ली की हालत देखिए। लेकिन उसके बाद वो ये सब उनकी पॉलिटिकल एजेंडा खत्म होती, उसके बाद सडनली वो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होती, और बिना कोई तैयारी, जैसे नोटबंदी किया 4 घंटे की नोटिस में, उसी तरीके से लॉकडाउन भी 4 घंटे की नोटिस में। अरे लॉकडाउन आना शायद अनिवार्य था, लेकिन आया किस समय, 10 मौतें हुई थी और 562 लोग पॉजिटिव थे पूरे हिंदुस्तान में। आज हालत क्या है? इस लॉकडाउन के चलते हुए क्या इस महामारी के ऊपर अंकुश लगा? नहीं, और बढ़ता गया और फैलता गया। लेकिन ये लॉकडाउन का मकसद क्या था? हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करें, हमारे कर्मियों को, डॉक्टरों को जो है प्रोटेक्शन किट दे, हमारे टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करें, जो भी चाहिए हमें सामान, वेंटिलेटर वगैरह ऐसी चीजें लिया है। ये सब कुछ नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान। और दूसरी ओर जिस तरीके से लॉकडाउन किया, हमारे मजदूर भाई जो दूसरे प्रांतों से आए थे, उनके लिए ना गुजारा का क्या कोई चारा था, भूख से जिंदा रहने के लिए कोई चारा नहीं था, तो चले पैदल मार्च निकले वो अपने घर वापस जाने। तब से हम कह रहे थे उनके लिए सुविधा करवा दो कोई ट्रेन का, लेकिन 2 महीने तक कुछ नहीं की। अगर यही लॉकडाउन अगर थोड़ी तैयारी के साथ अनाउंस होता, लोगों से कह देते कि अनिवार्य है, ये आ सकता है, आप लोग सब तैयार रहिए, तो यही मजदूर भाई अपने ही खर्चे से वापस चले जाते अपने प्रांतों, और राज्य सरकारें भी तैयार होते, तैनात होते ये इससे निपटने के लिए। किसी को ये टाइम नहीं दी। महाभारत की युद्ध की बात कही, 18 दिनों में खत्म हो जाएगा, हम जीतेंगे, और ये कहा कि यहाँ पर 21 दिनों में हम जीत जाएंगे। वो 21 दिन जो है बढ़ते 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 2 महीने से 2.5 महीने तक हो गए, लेकिन जीत की जगह आज भी ये बढ़ता जा रहा है। यानी इस पूरी व्यवस्था को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, और जो चाहिए था, हमने क्या कहा, 7,500 रुपए हर महीने 6 महीने तक उन परिवारों को जो इनकम टैक्स नहीं भरते, और 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को हर महीने अगले 6 महीने तक। और इसके लिए अनाज आपके पास 10 करोड़ से ज्यादा टन पड़ा हुआ है गोदामों में, जो सड़ रहा है या चूहे खा रहे। आज जो है बोल रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन उसका भी अब क्या निकला रिपोर्ट, 13% जो है उसका बंटवारा हुआ, 13%। कि अब जिन लोगों को चाहिए उनको तो मिला नहीं। कई लोग मर चुके हैं भूख की वजह से, एक्सीडेंटों की वजह से, जब 2 महीने तक इस धूप में पैदल चल रहे थे। तो इसके लिए पैसे अगर की कमी है, वो कहते हैं पैसे, पीएम केयर के नाम पर एक निजी ट्रस्ट का फंड बनाया प्रधानमंत्री ने,
और इस निजी ट्रस्ट के अंदर अभी ये अनुमान है कि किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं, ये ट्रस्ट का ये टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। अनुमान ये है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ, मुलाजिमों से हर एक एक दिन की पैसा ले लिए, हमारे एमपीओ से उनके 2 साल के एमपी लैड फंड का पैसा जो है इस फंड में जमा किया। अब ये फंड क्यों? क्योंकि एक प्रधानमंत्री डिजास्टर रिलीफ फंड तो जब से आजाद हुए तब से है, वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, ऑडिटेबल है। ये ना ट्रांसपेरेंट है, ना अकाउंटेबल है, ना ऑडिटेबल है। उसके अंदर पैसे जमा हो रहे, किसके लिए? इस महामारी से लड़ने के नाम तो है महामारी से लड़ना, लेकिन हम कह रहे थे कि ये पैसा राज्य सरकारों को दो, इस पैसे से लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दो, नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति में आ गई एक बड़ी बड़ी एक 20 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल पैकेज। उसके अंदर एक्चुअल खर्चा कितना कर रही है सरकार? ज्यादा खर्चा कितना कर रही है? वो 2 लाख करोड़ से कम, यानी 10% हमारी जीडीपी की घोषणा, और वो उतर आई 1% से कम। अब ऐसी परिस्थिति में आज जो है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी है। मोदी सरकार वो जनता से कह रही है आप निपट लो, हम ये लॉकडाउन को अब हो गया, ये ओपनिंग अप हो गई। अब ये ओपनिंग अप जो हो गई, इससे केसेस और बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है। और राज्य सरकारों से कह दे कि अब आपकी जिम्मेदारी है, निर्णय आप लेते हो केंद्र में, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और राज्यों के ऊपर जो उनको बकाया है पैसा जीएसटी का, वो भी नहीं दे रहे हैं, अधिक जो है उनको मदद करने की बात छोड़ी। लेकिन इस परिस्थिति में असली एजेंडा जो आरएसएस बीजेपी का है, उस एजेंडा को लागू कर, ये है असली मकसद। महामारी के नाम पर, उसके खिलाफ लड़ने के नाम पर जो असली एजेंडा लागू हो रहा है वो ये है, जो पहली बात हमने बताई, पहला ये है वो नव उदारवादी आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, नियोलिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और एग्रेसिवली इसको ले जा रहे हैं। और ये नारा दिया है ये आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए। ये आत्मनिर्भरता को मजबूत करना नहीं है, ये आत्मसमर्पण को मजबूत कर रही है विदेशी और देशी पूंजी के सामने। भारत की संपत्ति का लूट हो रहा है और भारत को समर्पण कर रहा है वे मोदी सरकार विदेशी पूंजी और हमारे देशी पूंजी के उनके मुनाफे बढ़ाने की सुविधाओं की। अब ये है पहला उनका जो एजेंडा जो लागू कर रहे हैं, जिसको उनको बहुत फायदा है, क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए पहले ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ये सिलसिला शुरू किया, अब ये पीएम केयर्स की बात शुरू की। यानी लोग जो मर रहे हैं महामारी से, वहां पर भी जो है इस तरीके से उनकी पैसे या उनकी कंट्रीब्यूशन को वसूलने की बात जो हो रही है, ये है उनकी पहला असली एजेंडा। दूसरा, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करो, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करो तो हमारे माइनॉरिटीज, खासतौर पे मुस्लिम भाइयों बहनों को टारगेट करते हुए आज क्या देख रहे हैं आप दिल्ली में जो एक तरफा हमला हुआ था, एक सांप्रदायिक हमले, उस हमलों के अंदर जितने भी लोगों को मौत हुई, 53 लोगों की, उन लोगों को जिनके ऊपर हिंसा हुआ, जो चोट खाए हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन 53 मौतों के ऊपर कौन है इसके जिम्मेदार, केस ही दर्ज नहीं हुआ। जो लोग खुलेआम सोशल मीडिया में सब देखते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं, उस सोशल मीडिया के अंदर जो भाषण दे रहे थे मंत्री, केंद्र मंत्री जो भाषण दे रहे थे, उनके ऊपर कोई क्या कार्रवाई नहीं। कार्रवाई है जिनको मारा गया, जिनके घर जला दिए गए, जिनको उजाड़ दिया गया, उन लोगों के ऊपर आज कार्रवाई। अब उसी के साथ ये सीएए, एनपीआर, एनआरसी के शांतिपूर्वक प्रदर्शनों में जितने लोग हिस्सा लिए, आज उन सबको जो हिस्सा लिए उन सबको जो है आज उनके ऊपर कार्रवाई और गिरफ्तारी शुरू। यानी ये टारगेटिंग जो होता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, आप देखें जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पुलिस जिस तरीके से लाइब्रेरी में घुसकर छात्राओं को जो पिटाई की है, उनके ऊपर कोई केस नहीं, उन सभी छात्राओं के ऊपर केस और उनको गिरफ्तार करके जेल में लगा गया। इतनी कि एक गर्भवती युवती जो है उसको भी जेल में है। तो ये जो है ठीक रूप से उनका जो हिंदुत्व राष्ट्र की जो एजेंडा है
उसको लागू करने के लिए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, उसके आधार पर अपना हिंदुत्व कम्युनल वोट बैंक की कंसोलिडेशन के लिए ये जो पूरा का पूरा काम ये जो हो रहा है, इसका एक लार्जर मकसद है। मैं उस पर आऊंगा। तीसरा जो कर रहे हैं वो ये है कि एक तानाशाही की रुझान, आम लोगों के जन्मवादी अधिकार, मानव अधिकारों के ऊपर बड़ी तीव्र हमला। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी हमारे देश के अंदर वंचित लोग, जैसे दलित है, जैसे माइनॉरिटीज है, उनके हित में आवाज उठाता है, उन सब के ऊपर यूएपीए, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या सेडिशन एक्ट लगाकर उनके ऊपर कोई, उसके अंदर कोई बेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो है उनके ऊपर ऐसे केसेस डालकर जेल में बंद, जेल के अंदर जो महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं उनके अंदर उठा के ले जाए, उनके अंदर चार्जशीट भी आज तक वो चार्जशीट भी उन्होंने फ्रेम नहीं कर पाए। यानी जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको सेडिशन में बंद करो। ये तानाशाही का तो कंप्लीटली ये जो है अथॉरिटेरियनिज्म की एक बहुत ही गंदा रूप जो है सामने आ रहा है, और तरीके फांसीवादी तरीके इस्तेमाल करो ताकि ये इस बात के लिए कि सरकार के खिलाफ कोई विरोध की बात नहीं उठ पाई। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया को तो देख ही रहे हैं आप सभी लोग, हम सभी लोग, इसलिए मैं तो टेलीविजन देखना बंद ही कर दिया। आज की बात नहीं, कई सालों से। लेकिन अब इसके अंदर देख के लगता है कि अभी तक तो 200 बार हमारी जंग होनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ। अभी तक तो चीन के साथ तो होना ही मतलब होना था या हो भी गया। खैर ये सब दुष्प्रचार जो मीडिया के तरफ से आती है उसके ऊपर जो कब्जा, अब कोर्ट कचहरी की भी क्या बात है। धारा 370 को रद्द किया तब से लेकर पिछले साल अगस्त से लेकर पिटीशन चैलेंजिंग के पड़े हुए हैं, आज तक सुनवाई नहीं। आपके सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में पिटीशन पड़े हैं, आज तक सुनवाई नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो गए, वो चुनाव हो गया, वो पैसे बना लिए, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब इसके बारे में क्या कहें इसके अफसोस। आपके इलेक्शन कमीशन आज जो है एक तरफा वो निर्णय ले लेते हैं, पोस्टल बैलेट अलाउ करेंगे जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। पोस्टल बैलेट की हेरा फेरी कैसे होती है सब जो जानते हैं वो उनको पता है। और अभी आरोप निकले हैं अमेरिका में ट्रंप की जीत भी उसी पोस्टल बैलेट की मैनिपुलेशन की वजह से हुई थी अमेरिका में, ये आरोप है। अब ऐसे बातें जब आ रही है तो इलेक्शन कमीशन की, सीबीआई की बात, कोई भी संस्था आप देख लीजिए, आज सीधा सीधा जो कानून की रक्षा करने वाली संस्था है कि बीजेपी के राज्यों के अंदर, वो आप देखते हैं कि वहां पे किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है राजनीतिक मकसद और परिस्थिति के लिए। तो ये पूरा का पूरा कानूनी व्यवस्था का मतलब ये संवैधानिक व्यवस्था का, इसको जो है बर्बाद करनी पड़ती है। और चौथा प्रक्रिया कि एक एकीकरण करें आपकी राजनीतिक अधिकार की, यानी एक यूनिटरी स्टेट की तरह। फेडरलिज्म जो एक बेसिक फंडामेंटल फीचर है हमारी संविधान का, उसको रद्द करते हुए सभी निर्णय लेने की अधिकार पूरा का पूरा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के अंदर अधिकार सीधा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के हाथ। यानी इस तरीके की यूनिटरी स्टेट स्ट्रक्चर बनाना, ये सब बातें जरूरी है अगर हमारी आज की संवैधानिक व्यवस्था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको खत्म करके उसकी जगह पर एक कट्टरपंथी, एक नफरत फैलाने वाली, एक फांसीवादी रुझान की एक हिंदुत्व राष्ट्र का कायम करना, ये है आरएसएस का मकसद। और इस मकसद को पूरा करना है तो पूरा अधिकार, राजनीतिक अधिकार केंद्र सरकार में होनी चाहिए। राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं, राज्यों को कोई अधिकार नहीं। पूरे संवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है और
एक नफरत की वातावरण पैदा करना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेजी करते। तो ये पूरा मकसद को करना है। तो पांचवा जो उनकी असली एजेंडा है कि भारत को एक तरफ से और मजबूती के साथ अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ जोड़े, उसकी दुमचल्लू बनाए रखे। जो प्रक्रिया पहले ही थी उसको और मजबूत किए जाए। आज दुनिया के अंदर जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, अमेरिकन साम्राज्यवाद की जो कोशिशें रही, उस पूरे कोशिशों को, चीन को कंटेन करने की बात हो या दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी को और मजबूत करने की बात हो, उन सब में आज आप देखेंगे भारत सरकार अमेरिका के साथ जुड़ी। यानी इसके चलते हुए हमारी जो अस्तित्व है दुनिया में भारत का, उस अस्तित्व के ऊपर ही चोट लगा रहे कि स्वतंत्र हमारी विदेश नीति जो होनी चाहिए उसको टोटली रद्द करते हुए एक अमेरिकन साम्राज्यवाद की दुमचल्लू के रूप में उतारा है। यानी ये सब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यही है वो एजेंडा, जो असली एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, जो ये मोदी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है महामारी और इस लॉकडाउन की व्यवस्था की परिस्थिति को, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी एजेंडा को लागू कर। और इसी के चलते हुए आखिरी जो पॉइंट था अमेरिकन साम्राज्यवाद की दुमचल्लू के रूप में, उसी के चलते हुए आज हमें देखना है कि ये जो हड़प जो हुई है भारत और चीन के बीच में, जो अमेरिका के पक्ष में जो बात चलती है, उसका भी एक रोल होगा। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हड़प हो रही है। ये अभी की बात नहीं, पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो है ये तनाव चल रहा था। अब इस तनाव के अंदर जो चल रहा था कि अपनी पार्टी की क्या रुझान रही 1962 में भी ये प्रचार जो चलता है कि हम जो है चीनी एजेंट हैं, बहुत ही गलत दुष्प्रचार है। इसका पीछे एक राजनीतिक मकसद है और वो राजनीतिक मकसद है कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक मकसद। 1962 में ज्योति बाबू जैसे नेता और उनके साथ जो मिलकर जो सीपीएम बनाए थे, पहली बात तो 62 में सीपीएम नहीं था, सीपीआईएम बना 64 में। लेकिन जो नेता सीपीआईएम बनाए हैं उनकी बात क्या थी? जंग के आधार पर भारत और चीन के बीच में समस्या का हल नहीं होगा, आपको बातचीत के आधार पर ही इसको हल करना चाहिए, यही बात कही। और यही बात 62 के बाद देश के शासक वर्ग और सरकार 1988 में राजीव गांधी जब वो प्रधानमंत्री थे, इसी बात को आगे ले जाते हुए वो बातचीत की दौर शुरू हुआ। वहां पे बीजेपी के वाजपेयी साहब इसको और आगे बढ़ाए, बाद में सरकारें इसको आगे बढ़ाती रही। और आज ये तनाव जो हुआ है गलवान में, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर हमने क्या क्या रुझान लिया था पार्टी ने? हमारे शहीद जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने कहा सरकार का घोषणा है मोदी सरकार का कि चीन के विदेश मंत्री से अपने विदेश मंत्री की बातचीत हुई और दोनों ने मिलकर यही तय किया कि इस समस्या को हल करने के लिए हम शांतिपूर्वक ढंग से कूटनीति के आधार पर, मिलिट्री लेवल के आधार पर बातचीत के चलते हुए इसको सुधारे और शांति और नॉर्मल सी जो है हम सरहद के ऊपर एलएसी के ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं। सीपीएम ने कहा कि उस अप्रोच के साथ हमारी पूरी समर्थन है और मोदी सरकार की इस अप्रोच को हम समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ हमने क्या कहा कि अपनी सरकार को पहलकदमी करते हुए इस बातचीत को और आगे ले जाने की जरूरत है। ये हड़पें क्यों होती है? क्योंकि एलएसी सही ढंग से डिफाइन नहीं है। चीन मानता है एक तरह का एलएसी, हम मानते हैं एक तरह का एलएसी। बैठकर तय करिए कि डिफाइन करिए एलएसी को, सीधा क्लियरली डिलिनेट करिए और उसका वायलेशन जो होता है उसके ऊपर हमें जो है डटकर खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन पहले वो डिलिमिटेशन करिए। ये हमने रखी थी 4 पॉइंट। और इसके बाद हमने यही कहा था कि इस मीटिंग में हम आए क्योंकि हम ये समझ कर आए कि हमें जानकारी मिलेगी कि एक आखिर अप्रैल और जून के बीच में हुआ क्या चीन हमारे जमीन पर आया, क्या हमारे जमीन की हस्तक्षेप की, वास्तविकता क्या है? इसका जवाब क्या मिला? कोई हमारे देश के अंदर दखल नहीं की हमारे जमीन पर। मोदी साहब ने खुद कहा कोई हमारे देश के अंदर चीन का दखल नहीं है, कोई चीन का कोई
ये इंस्टॉलेशन या कैंप या टेंट नहीं है हिंदुस्तानी जमीन पर। अरे जब अगर ये बात है तो ये हड़प हुआ क्यों? हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए? अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं। दूसरी बात हमने रखा कि सीधी बात बताइए, आज देश को एकजुट होकर हमें जो है इस समस्या का सामना करना है। यहाँ पर आज फेक न्यूज के साथ या आप दुष्प्रचार के साथ लोगों के बीच में बंटवारा मत करिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों के बीच में बंटवारा करेंगे तो ये देश के हित में नहीं होगा, इसको बंद करवाए। लेकिन आप देखते हो कि किस तरीके से गलत गलत प्रचार अपने पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर व्यक्तिगत, अपने नेताओं के ऊपर फोटोग्राफ मॉर्फ करके नकली फोटोग्राफ दिखाते हुए। एक तो एक बड़ा पोस्ट वायरल हो गया था ये कहते हुए कि जी जिनपिंग को हमने कहा था कि वो हमारा बॉस है, और वो जो ट्विटर का जो उन्होंने दिखाया, उस समय मैं ट्विटर पे था ही नहीं, मैं ट्विटर ज्वाइन नहीं किया था तब। और वो फोटोग्राफ था, हिंदू अखबार में छपा था जब हम चीन गए थे उस समय, बहुत पहले की बात, जब उनसे शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी उस समय वो फोटोग्राफ। अब इस तरीके के गलत प्रचार, हमारे प्लेकार्ड जो हम पहने थे, हमारे बाकी पार्टी के नेता पहने हुए थे, उसके अंदर जो लिखा गया था उसको बदल कर, अब ये सब प्रचार करना, ये एंटी कम्युनिस्ट जो उनका जो रुझान है उसको लेकर आज ये सब कर रहे हैं। जवाब मिले, ये सब लोग ये गलत गलत जो लगाए उनके ऊपर केसेस भी लगाए गए, वो चलेगा प्रक्रिया, वो अलग बात। लेकिन आज एकजुट करके रहना, ये अपना दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमने ये कहा कि देखिए, कारगिल जब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता, और उन्होंने उस समय कारगिल के अंदर क्या इंटेलिजेंस के अंदर कोई कमजोरी हुई, कोई कमी हुई, उसको कैसे दुरुस्त करना, एक कमेटी बनाया था के सुब्रमण्यम की तरफ से। तो आज अप्रैल से जून तक क्या हो रहा था कि इसकी कोई खबर सही थी अपने पास या नहीं, कोई कमजोरियां हैं, जो कोई खामियां हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए कोई कमेटी बनाएंगे आप? नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और आखिर में हमने कहा कि भारत का अस्तित्व दुनिया में है स्वतंत्र विदेश नीति। इसी स्वतंत्र विदेश नीति की बुनियाद के तौर पर पंचशील की बात हमने कही थी पूरी दुनिया के सामने, और ये पंचशील की बात और ये स्वतंत्र विदेश नीति, इसको कमजोर नहीं करिए अमेरिकन साम्राज्यवाद की दुम चल्लू मत बनिए। अब कल से क्या हो रहा है, वहीं पर जहाँ पे LAC है, वहां से अब 1.5 किलोमीटर से और 2 किलोमीटर के बीच में हमारा सेना वापस आया, चीन का सेना वापस गया। अब वो जमीन की जगह किसकी है जहां पर ये हड़प हुई, उसके अंदर ऊपर विवाद है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बैठकर तय करिए क्या है ये लाइन, डिलिमिटेशन की लाइन। वो जब क्लियरली डिफाइन हो जाता तब पता चलता है क्या नहीं क्या नहीं। तो यही रुझान जो पहले हमने कहा, सरकार की ये अप्रोच को हम समर्थन देते हैं कि बातचीत के आधार पर, बातचीत और कूटनीति के आधार पर वहाँ पे शांति और बिना तनाव की परिस्थिति तैयार करें, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीछे हटे हैं दोनों सेनाएं। उन्होंने कहा कि ये बातचीत और आगे चलेगी, और कुछ दिन चलेगा, 3 फेजेस में चलेगी, तो ये समय लगेगा। अब दोनों सरकारों उसके अंदर उनकी सहमति है, और दोनों सरकारों के बीच में ये बातचीतें हो रही है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से इस समस्या का हल हो, क्लियरली डिफाइन करिए LAC, और इसी बातचीत के आधार पर जो सरकार कहती है उसी का समर्थन CPM कर रही है। तो आज जिस सब तरीके से ज्योति बसु को उस समय पर उनके ऊपर भी गलत आरोप लगाए, चीनी एजेंट वगैरह वगैरह, इस तरीके से बातें करते हुए आज वही फिर दोहराना चाहते हैं, ना तब चला ना अब चलेगा। तो आज कॉमरेड ज्योति बसु के स्मरण में कई सारे गुण हैं, कई सारे उनके उपलब्धियां हैं लंबी राजनीतिक जीवन में। लेकिन एक चीज आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि उनसे सीखना है कि आखिर में जनता के बीच में जाना। अब ये उन्होंने क्या किया, 1960 के दशक में बाकी नेताओं के साथ मिलकर वो यूनाइटेड फ्रंट बनाए, और वो यूनाइटेड फ्रंट के टैक्टिक्स के चलते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन का, वामपंथी आंदोलन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है बंगाल में। अब सभी जानते हैं कि अपने
जो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है उनको जोड़ने में ज्योति बसु का कितना बड़ा हाथ रहा है। सबसे ज्यादा एमएलए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद उस एकता को मेंटेन करने के लिए ये बंगाल कांग्रेस के नेता अजय मुखर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मौका दिया ज्योति बाबू ने। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। यानी अपने लिए एलाइज को जोड़ना, ताकि अपनी वर्ग दुश्मन जो है और अपनी वर्ग शत्रु जो है राजनीतिक, उस वर्ग शत्रु के मजबूती के साथ निपटने के लिए जितने से जितने लोग अपने साथ राजनीतिक तत्व अपने साथ आने के लिए तैयार है, उन सबको साथ में जोड़ो। ये यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स की इसकी जो खूबी है और इसे जो फायदा हुआ है वो आज सीधा सीधा यहाँ पे नजर आता है। उसे हमें सीखना होगा। आज की परिस्थिति में ये बहुत बहुत बड़ी जरूरत। पहले वामपंथी ताकतों की एकता मजबूत करनी है, उसके बाद जो भी ये हमारे साथ आज की परिस्थिति में इन सवालों पे जो अभी तक हमने उठाए थे उन सवालों पर आने के लिए तैयार है, उन सबके साथ मिलकर आज इस मोदी सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ, उसके एजेंडे के खिलाफ हमें देश की जनता को लामबंद करने के लिए अपने सहयोगियों को, अपने एलाइज को हमें एकजुट कर कर उस एकता को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी पॉइंट, ज्योति बाबू हर समय ये कहते थे, सबसे बड़ा उनका शिकायत तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी के खिलाफ क्या था कि ममता बनर्जी ने भाजपा को या आरएसएस को रास्ता दिया बंगाल में घुसपैठ करने के लिए, और ये उनका मानना था कि ये बहुत खतरनाक है बंगाल की भविष्य के लिए। आज किस तरीके से सही ये बात साबित हो रही है। लगता है कि ये कोई भविष्यवाणी थी उस समय, क्योंकि वो उस पीढ़ी में थे, उस पीढ़ी के थे जो लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, और उस पीढ़ी के थे जो शिकार हुए हैं देश के बंटवारा से। और बंगालियों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव है इस बंटवारा का। बाकी प्रांतों के लोग समझते नहीं है उसको। आज भी दूसरे प्रांतों के लोग कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल क्यों बुलाते हैं, पूर्वी बंगाल तो हो ही गई बांग्लादेश, तो हम फिर भी पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक जज्बात, एक चिंतन, एक समझ बंगालियों में है कि हम सब बंगाली एक। तो ये इस समझ के आधार पर ज्योति बाबू ने कहा था कि उस समय जो सांप्रदायिक जहर से जो बढ़ाया गया था ब्रिटिश हुकूमत ने, जो बढ़ाया गया सांप्रदायिक ताकतों ने दोनों तरफ से, दोनों कौमों की तरफ से, उसके खिलाफ आज की पीढ़ी को याद नहीं होता कि 1947 की 15 अगस्त को महात्मा गांधी लाल किले पे नहीं थे अपना तिरंगा जब फहरा रहा था आजादी के समय। वो कहाँ थे? कलकत्ते में कौमी दंगे जो हो रहे थे, नौखाली जाने के लिए वो कोशिश की, जाने नहीं दिया उनको सांप्रदायिक ताकतों ने। कलकत्ते के शहर के अंदर जो कौमी दंगे हो रहे थे उसको रोकने के लिए एक आमरण अनशन पे थे। कलकत्ता का ये इतिहास है। अब इसको पिछले 50 सालों से इसको ना उभरने दे। इसके अंदर वामपंथियों का और ज्योति बाबू के नेतृत्व में और ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा है, ताकि यहाँ पर कम्युनलिज्म और कम्युनल कॉन्फ्रंटेशन ना बढ़े। एक प्रोग्रेसिव सेक्युलर डेमोक्रेटिक के स्टेट के रूप में उसकी पहचान हुई पूरी दुनिया में। आज उसी भाजपा को एंट्री देना टीएमसी के नेत्री की तरफ से, उसी भाजपा के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहना, उसी भाजपा के साथ कई बार ये समझौते करना राजनीतिक, उसी भाजपा के साथ एक जो है दो तरफा ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में शामिल होना, एक मेजॉरिटी के साथ है तो एक माइनॉरिटी के साथ होने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे को वो मजबूत करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को। ये तभी संभव होगा सांप्रदायिकता के खिलाफ जब हम एक जनवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में उनका सामना कर सकें। क्या आज के दिन जब ये मुख्य मकसद है अपनी भाजपा और उसकी सांप्रदायिक राजनीति को आइसोलेट करना है और उसको हराना है, क्या ये काम हो सकता है आपके तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में? असंभव। एक ही उदाहरण लीजिए आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन,
आज आपकी पश्चिम बंगाल की सरकार मना रही है उसको। आजादी के समय से लेकर, बिधान राय के समय से लेकर आज तक कभी भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस जन्मदिन को ऑफिशियली मनाया। आज ये मना रहे हैं बंगाल की सरकार, या उसके बारे में विज्ञापन दिए, जो भी है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सांप्रदायिक तत्वों के साथ कॉम्प्रोमाइज का रुझान। उनकी बाकी जितने भी गैर जनतांत्रिक या गैर आई मीन लोगों के खिलाफ जो हमले हैं, उनका हिंसा की राजनीति है, जिस तरह की बातें वो करते हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो बात को लगे। आज जो मुख्य मकसद है भाजपा को हराना, क्या इसके अंदर तृणमूल कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइजिंग रोल की वजह से वो संभव नहीं। तो इसलिए आज बंगाल की जनता को इकट्ठा करने की जरूरत है, बंगाल के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। और वहीं पर ज्योति बाबू की उसकी प्रेरणा लेकर हमें सीखना है कि जब कभी ऐसी समस्या आई, जनता के पास वापस जाओ, जनता से अगर गलती हुई तो माफी मांगो, जनता आपको दिखाएगी आगे का रास्ता क्या है। और ये काम करना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा एलाइज को हम जोड़ सकेंगे, उन सबको जोड़ते हुए आज जो है इस मकसद को काम कर कर बंगाल की जो प्रतिष्ठा है, बंगाल का जो रिनायंस का जो भूमिका है, बंगाल की जो एकमात्र भारत के अंदर शायद एकमात्र शहर है कोलकाता जहाँ पर शेक्सपियर के नाम पर सारणी है। अब ऐसे जो प्रोग्रेसिव कल्चर और विचारधारा की जो पूरी की बंगाली कल्चर और आपकी रविंद्र संगीत हो, जो भी आपकी जो पूरा का पूरा जो कल्चर है, उसका संरक्षण करना है तो इस सांप्रदायिक जहर से मुक्ति की जरूरत है। और उसको करना है तो जो इसके लिए तैयार है उनके साथ मिलकर, जो लोग तैयार नहीं है उन लोगों के खिलाफ हमें जो है आज इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई में शामिल होना है। जैसे मैं पहले कह रहा था, दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर वर्ग संघर्ष तेज हो रहे हैं और तेज होंगे। और उसके अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मकसद है कि भाजपा को आज आइसोलेट कर कर उसको हराने की जरूरत है। अगर ज्योति बाबू की स्मरण कर रहे हैं हम, तो स्मरण का यही लक्ष्य और उद्देश्य होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर कॉमरेड ज्योति बसु को आज लाल सलाम कहें और ये संकल्प ले कि आज के दिन इस राजनीतिक परिस्थिति में भाजपा को आइसोलेट कर कर हराना, और जो भी ताकतें उसको मदद करती है उनको भी जो है दरकिनार करना, ये जरूरी है हमें आज। तो ये सब एकजुट होकर हम सब मिलजुल कर इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद और आप सबको मेरा लाल सलाम। I request Comrade Sitaram to stay back for a while. আমাদের সবার তরফ থেকে এবং বৃহত্তর জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ, গোটা পৃথিবীতে যারা জ্যোতিবাবুর গুণমুগ্ধ মানুষজন আছেন, তাদের সবার তরফ থেকে কমরেড সীতারামকে তার এই স্মারক বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এখন একটা কাজ বাকি আছে। এই জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের ওয়েবসাইট হিসেবে আমরা একটা আজকে রিলঞ্চ করব। জ্যোতিবাবু নিজে দেখেছেন, অ্যাপ্রুভ করেছেন, অথেন্টিকেট করেছেন jyotibsu.net এই ওয়েবসাইট। সেটাকে আমরা সেটাকে নিয়েছি। আমরা ধন্যবাদ জানাবো যারা এটা শুরু করেছিলেন তাদেরকে। আর তারপর থেকে আমরা এখন থেকে এটা জ্যোতি বসু সেন্টারের ওয়েবসাইট হিসেবে কাজ হবে এবং যোগাযোগের মাধ্যম হবে। সেটাকে আমরা কিছুটা আরও পরিমার্জন করব, আরও কিছু সংযোজন করব। কিন্তু প্রথমে যেটা শুরু হয়েছিল সেটাকে রেখে দিয়ে আর্কাইভস হিসেবে। তো আমি এখন কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে বলবো, টেকনিক্যালি যদিও তিনি দিল্লিতে আছেন, আমরা কলকাতায় আছি, তার মধ্যে আজকে এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটি যুগে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বলছি আমরা, তা বলছি না, বলছি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এবং শারীরিক দূরত্ব, কিন্তু সামাজিক নৈকট্য, এবং যে কথাগুলো বলেছেন কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি সেটাকে মনে রাখতে হবে। সেটাই আমাদের আজকের দিনের লড়াই সংগ্রাম। জ্যোতিবাবুকে শ্রদ্ধা জানানো মানে হচ্ছে তার এই বার্তাকে আমরা কিভাবে আরও বেশি করে নিয়ে যেতে পারি। বিশেষত প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা এবং সেই শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে জড়ো করতে হবে, যারা এই ফাঁসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং এই লুটপাটের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি will now relaunch this website and you will find this screenshot here of the website, and for a while this website will run for the benefit of the audience.
সবার জন্য হবে। Okay. Now Comrade Sitaram Yechuri, the moment you push your button of your laptop, it will be there on the screen. The jyotibasu.net Oh, website will be relaunched. Okay. okay, okay. These are the people. Okay. Thank you. Thank you. Wonderful. This website. Thank you. Okay. Thank you, Comrade Salim. সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ যারা শুনেছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে ধন্যবাদ। এবং যারা উপলব্ধি করেছেন। আমরা আরেকবার কমরেড জ্যোতি বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আপনার সঙ্গে থাকবেন, ভবিষ্যতেও এই অঙ্গীকার করছি, আমরাও থাকবো। থ্যাংক ইউ কমরেড সীতারাম, থ্যাংক ইউ অল। Thank you.